Hello. Hi guys, good evening. Can you guys hear me? All right, great. Sorry, I started a little late today. So, लास्ट क्लास का एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं. In fact, it was 22nd को ही था ना. हाँ, right. So, as a quick recap, if you guys remember, we spoke about some of the additional results of kinetic theory of gases, in which I had asked you to remember these results, and along with these results, we also spoke about the real gases. Okay, so if you remember, real gas वाला जो part था, based on our discussion in the last class, जैसा मैंने आपको बताया था, we'll first elaborate on the experimental understanding, right? And then we'll develop the real gas equation, van der Waals equation in particularly, to help explain this experimental behavior, right? So if you remember what the experimental behavior was, a quick recap मैं आपको देना चाहूँगा. ठीक है, we'll start with the mathematical interpretation first, that PV is equal to nRT was something that was followed by an ideal gas. However, PV real is not equal to nRT. In order to get this equality, we substitute a variable here called as compressibility factor, Z, right? So you can read Z as PV real upon PV ideal, right? Now, based upon that result, we did discuss that how that deviation is for a real gas under different conditions. So we spoke about high pressure conditions in which we observed that the gas showed positive deviation. Z was more than 1. Under low pressure conditions, we observed that Z was less than 1. We called it negative deviation. And I related these concepts to the intermolecular forces that are there between real gas particles. So there were repulsive forces and there were
attractive forces. Under high pressure conditions, the repulsive forces were making the gas less compressible. The real gas less compressible, right? Keeping its Z more than 1. And in case of low pressure conditions, the real gas was more compressible, highlighted by Z being less than 1, right? So this was something which we also represented using this graph of Z versus P. Now, before I start, talking about the real gas equation, I just wanted to discuss one or two questions, which were based on this particular equation, PV is equal to Z and RT, right? So you have one question in front of you, okay? And because it is, highlighting that the compressibility factor in the question is given to you, based on that, you can, apply this equation quite simply. PV is equal to Z and RT. You substitute the values that are given to you, and accordingly, okay, from the first condition you get the moles, you substitute that in the second condition to get the answer. ठीक है? So ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, so as to demonstrate the use of this PV is equal to Z and RT. ठीक है? This is not the van der Waal equation. This is, you can say, the experimental equation only, in which Z का value is something which is either given to you or would be asked from you. ठीक है? So based on this, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? Like pretty straightforward, nothing fancy. ठीक है? Any doubts in this? All right. Then let me ask you to try this question. ठीक है? ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Can you guys see the next question? All right. Try this one. Am I audible, guys? Can you guys hear me? हाँ, मतलब आई थिंक थोड़ा सा लैग रहेगा, बिकॉज फॉर सम रीजन आज इंटरनेट इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो बीच में अगर लैग आएगा ना तो लेट मी नो. आई विल रिपीट और रीआइटरेट एनीथिंग दैट वाज मिस्ड. ठीक है? एक बार ये क्वेश्चन पे वर्कआउट करो. तत्वेश, कौन से पार्ट का आंसर दिया तुमने? तुमने सीधे सी पार्ट का आंसर दे दिया. अच्छा, ठीक है. हाँ, मतलब आई थिंक या योर आंसर इज क्वाइट करेक्ट, और ऑलमोस्ट करेक्ट, आई शुड से वेरी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर. ठीक है, बाकी पार्ट्स के भी आंसर ट्राई करो.
All right, so are you guys trying the ideal gas equation here? Because if you are trying that ideal gas equation, then definitely that's not going to work, because as you can see, the question is highlighting the fact that it is a real gas in front of you, right? So एक पहला intuition यहाँ से आ जाता है, like you might use the equation, if you remember, PM is equal to DRT, right? आप शायद ये वाला equation use कर लो, but ये equation ideal gas के लिए है, ठीक है? So should not use that equation. What you can rely upon is the data of effusion. Based on it, maybe you can give an attempt towards getting the density or the molecular weight of the vapor. हाँ राइट हार्दिक, पहले वाले का करेक्ट है. प्रथमेश तुमने अच्छा ग्राम पर मोल में दिया है कि केजी पर मोल में दिया है? इफ यू हैव गिवन इन केजी पर मोल देन इट इज करेक्ट, otherwise gram per mole में you don't need 10 raised to the power of -3. हाँ ठीक है. हाँ राइट गुरुदेव, ठीक है. फर्स्ट पार्ट का आंसर करेक्ट है, ठीक है. सेकंड पार्ट में मोलर वॉल्यूम निकालना है, तो अगेन डोंट यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये गड़बड़ हो जाएगा फॉर द सेकंड पार्ट. कि प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है, 1 मोल डाल के आर और टी डाल दिया, वो भी मैच नहीं करेगा, ठीक है. हाँ राइट, सेकंड पार्ट का आंसर भी करेक्ट है प्रथमेश, गुड. तो मतलब यू आर practicing all your DPPs well, I think, because it's a good question. I do not expect many students to get the answer in this one. Right, Hardik. हाँ ठीक है प्रथमेश. गुड गुड, ठीक है. तो बाकी लोगों को भी एक हिंट दे देता हूँ. Like if you will try to work with the molecular weight, right? Don't use PM is equal to DRT. That is going to lead to an incorrect answer, because the formula is applicable for real gas. Sorry, ideal gas, not real gas, right? So we use the rate of effusion wala discussion, that rate of effusion यहाँ पे दिया हुआ है, that under identical conditions. अब identical conditions दिया हुआ है, तो right hand side पर I'll still only take molecular weight as the factor, and then if I use it, I'll simply get my answer as molecular weight is equal to 18 gram per mole. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट पार्ट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ, ठीक है. हाँ राइट प्रथमेश, करेक्ट. ऑलराइट, देन सेकंड पार्ट पे मैं आता हूँ. मोलर वॉल्यूम के लिए अब आपको यहाँ पे नोटिस करना, अगेन डोंट यूज PVM is equal to nRT, right? PV is equal to nRT नहीं यूज करना, because this is again an ideal gas equation. यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, डेंसिटी का जो डेटा है उसको यूज करूँगा. That density is given to me as 0.36 kg per meter cube. So what does this mean? I can read this as 360 gram occupies 1000 liters, right? Because kg per meter cube को मैं ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करूँगा. So 0.36 kg is 360 grams and 1 meter cube is 1000 liter, right? So 360 grams is occupying 1000 liters. Then 1 mole, that is 18 grams, would occupy how much? ठीक है.
ये जो मैंने यहाँ पे लगाया ये तो सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट? तो इसमें रियल गैस हो आइडियल गैस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, because this kind of unitary method works for all substances, right? So based on this I will be able to get my answer that the molar volume is 50 liters, right? ये सेकंड वाला पार्ट समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एक बार जूम आउट कर देता हूँ. Does anyone have doubt in the second part? All right. Then what about the next one? यहाँ पर अब आपको z का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो z का भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, that it is PV real upon PV ideal, right? And like if we apply the ideal gas equation, the volume that we would have got is equal to nRT by V. ठीक है, that is the volume which we would have got by applying the ideal gas equation. And real gas का volume हम लोगों ने अभी just पिछले पार्ट में निकाला है. So based on that calculation, we get the value of Z as 1.22. ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? Now अगर Z 1.22 है, तो which kind of forces are dominant, attractive or repulsive? Based on our understanding from the last class, which is the dominant force? हाँ, ये इसका आंसर सबको याद है क्योंकि this was a simple subjective one that we did in the last class. So yeah, correct. Repulsive forces would be dominant because Z is greater than 1. Had Z been less than 1, then we would have said the attractive forces were dominant. अच्छा, then the last part, the fifth part of the question, ठीक है, और you can see यहाँ पे ऐसे B करके लिखा हुआ है, in which they are saying that assuming vapor behaves ideally at 1000 Kelvin, ठीक है, then it is asking to for you to determine the average translational kinetic energy of a molecule. Now this average translational kinetic energy of molecule would be based upon our equation 3 by 2 kBT, right? So coming back, यहाँ पर आप notice करना, we have the average translational kinetic energy as 3 by 2 kBT. ठीक है, हाँ मैंने exact value तो calculate नहीं करा है, but yes you have the formula because per molecule level पे calculate करने के लिए बोला हुआ है. ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? So this was a question which was of a real gas question, however not dependent upon any of the van der Waals equations or detailed discussions which we are going to now study, but simply based upon the fact that we write real gas behavior in terms of the compressibility factor, that is PV is equal to ZnRT, right? Okay, ठीक है. Now इसमें किसी को कुछ डाउट है in this particular question? Otherwise I would want to move on to the next topic, which is, as I said, van der Waals equation. Is this clear with everyone? अच्छा, अभी भी वॉइस क्रैक हो रहा है or is it something better? Okay, let me see. Okay, is it better now or is it still cracking? Okay, ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा आज नेट का इशू है. Okay.
ठीक है, अभी आ रहा है, अभी इज इट ओके? लेट मी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे फोकस करना। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई स्पोक विद यू इन द लास्ट क्लास, दैट हम लोग रियल गैस को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, एंड वन सच इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन इज वॉन डर वॉल्स इक्वेशन। ठीक है, नाउ हाउ, अभी अपना फोकस क्या रहेगा? ठीक है, अपना फोकस रहेगा फर्स्ट टू क्रिएट वॉन डर वॉल इक्वेशन। ठीक है, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट वॉन डर वॉल इक्वेशन, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, वी आर गोइंग टू मॉडिफाई आइडियल गैस इक्वेशन, एंड basis that modification, that van der Waal equation, that modified equation should be able to explain the experimental behavior that we discussed in the last class. ठीक है, सो यहाँ पे नोटिस करना, the statement goes in the following manner, that by removing the ideal gas assumptions, will modify the ideal gas equation to predict real gas behavior. ठीक है, अभी मॉडिफिकेशन किस तरीके से होगा यहाँ पे नोटिस करना, PV ideal is equal to nRT, but PV real was not equal to nRT. So what we are going to do is we are going to correct the left hand side such that PV corrected becomes equal to nRT. ठीक है, and what is this correction that we are talking about? ठीक है, ये ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा, एंड इसमें मैं पहले से ही आपको ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 4 या 5 बार वापस आकर इसको आपको रेफर करके बताना पड़ेगा, तभी यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस करेक्शन। ठीक है, तो पेशेंस रखना while we are going to discuss these corrections, you might get stuck कि समझ में नहीं आया, so I am going to kind of go back and help you understand these corrections once we get a basic understanding, तो वापस इस पर आएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है, these corrections shall be done such that if real gas behaved like an ideal gas. ठीक है, तो यहाँ पर what I'm trying to say is PV रियल जो है वो NRT के बराबर नहीं है। ठीक है, बट अगर ये रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव कर रहा होता, ठीक है, then what corrections can I do on the left hand side such that this equation PV corrected becomes equal to nRT. ठीक है, तो इसमें what we will do is we'll break it down into two parts, एक प्रेशर करेक्शन और एक वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, P और V दोनों टर्म्स को हमें करेक्ट करना है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं into two parts. We'll talk about pressure correction and volume correction. सबसे पहले मैं वॉल्यूम करेक्शन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ध्यान से नोटिस करना। नाउ एज अ क्विक क्वेश्चन, ठीक है, इन द आइडियल गैस इक्वेशन V क्या रिप्रेजेंट करता था? What did V represent? Any clues? If you would have listened to my first lecture quite carefully and written the notes by yourself, शायद you will be able to answer. शुभम ने दिया है आंसर, ओके, वेल एक और आंसर सोचो शुभम। आई हैव अ मोर टेक्निकल आंसर टू दिस। व्हाट डिड वी रिप्रेजेंट? शुभम ने बोला है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, यश ने भी बोला है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इन विच द गैस इज प्रेजेंट। हर्ष ने भी बोला है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। ओके, बट ये आंसर करेक्ट नहीं है, मतलब करेक्ट भी है बट इट इज नॉट द मोस्ट फंडामेंटल वन विच आई एम लुकिंग एट।
ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, दिस वाज एक्चुअली द करेक्ट definition of V in the ideal gas equation. V represented volume available for free movement of gaseous molecules. Now, हमने अब आइडियल गैस में assumption क्या लिया था, that कंटेनर के अंदर, ठीक है, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. हमने ये assumption लिया था आइडियल गैस के लिए कि as compared to the size of the vessel, the actual size, the actual particles का size is negligible. तो पूरा volume का vessel was something that was available for free movement, and that is what we kept our value in the ideal gas equation as. Okay, that V is the volume available for free movement, that is the वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ठीक है, बट अब जब हम आइडियल गैस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से नोट, सॉरी, रियल गैस का डिस्कशन कर रहे हैं, देन वी विल नॉट टेक दैट अजम्पशन, वी विल रिमूव दैट अजम्पशन. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू से दैट वी कंसिडर द एक्चुअल साइज और वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स टू बी सिग्निफिकेंट एंड डू नॉट नेग्लेक्ट देम विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल. ठीक है, what we are saying is that we consider the actual size और volume of gas particles, ये हम neglect नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से अब notice करना, when I will say that volume available for free movement, it will be volume of vessel minus something, right? यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? That volume now available for movement will be volume of system minus something. Okay, that is what the corrected volume would be. Okay, now any guesses to what this something would be? Any guesswork? What would you like to put here as something? Okay, नहीं यश, आपने तो पता नहीं क्या Z कहाँ से आ जाएगा. शिवांक ने बोला है गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम डाल दो. हार्दिक ने भी वही बोला है कि जो एक्चुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम डाल दो. हाँ, प्रथमेश का भी यही रेस्पॉन्स है. सो ओके, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड फर्स्ट गेस. ठीक है, द फर्स्ट गेस दैट कम्स इज दैट आई शुड जस्ट इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करूं. ठीक है, सो लेट्स से इफ यू हैव if you have n moles of gas, right, so n divided by or n multiplied by Avogadro's number. ठीक है, अगर 1 मोल गैस है, ठीक है, तो यू कैन से Na मॉलिक्यूल्स हो गए. ठीक है, और हर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, अज्यूमिंग स्फेरिकल. ठीक है, एंड r इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड that is something which you can put here as excluded volume. ठीक है, volume that is not available for free movement. ठीक है, so this is a good first guess. However, ठीक है, there is a better guess that is available. ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन को पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है, when you will refer to the books, ठीक है, एक बेटर एस्टिमेट ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम निकल के आता है. ठीक है, एंड नोटिस करना, ठीक है, वो कैलकुलेशन किस तरीके से रहेगा. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव ये जो समथिंग मैंने बोला यहाँ पर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इसको हम लोग स्मॉल बी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इनिशियल गैस आपका रहेगा, लेट्स से अगर 1 मोल गैस है तो Na into 4/3 पाई आर क्यूब. However, there is a better guess that is available, and that better guess is half into Na into 4/3 pi into 2r का cube. ठीक है, this is actually a better guess. Now, कहाँ से आया ये? Why is it better?
ये अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। व्हेन अ गैस पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है, यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ वेसल है, ठीक है, व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज ये वेसल है, उसके अंदर गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कब हिंडर होता है, ठीक है, माय क्वेश्चन इज व्हेन डज द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल गेट हिंडर्ड, ठीक है, फ्री मूवमेंट चाहिए हमें मॉलिक्यूल का, तो उसका मूवमेंट हिंडर कब हो रहा है, हाँ राइट, हर्ष ने करेक्ट आंसर दिया। बाकी लोगों का गैस, मूवमेंट कब हिंडर होता है एक मॉलिक्यूल का, हिंडर का मतलब समझ में आता है ना, आई होप, राइट, इट इज ब्लॉक्ड और इट इज नॉट फ्री, हाँ राइट शिवांक, राइट यश, राइट ध्रुवा, राइट, जब कोलिजन्स हो रहते हैं, ठीक है, हाँ राइट आस्था, राइट सानिका, ठीक है, when there is an obstruction, basically saying that when there is a collision, correct? So when there will be a collision, we can understand that the movement would be restricted, ठीक है। so यहाँ पर notice करो, during collision with other molecules, ठीक है, the movement gets restricted, ठीक है। collision with walls भी रहेगा, ठीक है, एक वॉल के साथ में भी अभी, अच्छा ठीक है, अभी आ रही है आवाज, इज इट बेटर नाउ? अच्छा ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इज इट स्टिल क्रैकिंग और इज इट बेटर नाउ? ओके, इट इज स्टिल क्रैकिंग, ओके, लेट मी सी इफ आई कैन, ऑलराइट, अभी बेटर है? इज इट कमिंग क्लियरली नाउ? ओके, ठीक है। सो या एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, ध्यान से नोटिस करना, व्हेन डज द मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल गेट्स हिंडर्ड, तो यहाँ पे नोटिस करना दैट ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, विद अदर मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हेन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल गेट्स हिंडर्ड, ठीक है। कोलिजन विद वॉल्स में भी हिंडर्ड होगा, ठीक है, बट कोलिजन विद वॉल्स इज नॉट समथिंग which we are going to talk about a hindrance, because already हम लोग जो फ्री मूवमेंट की बात कर रहे हैं वो इनसाइड द वेसल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोलिजन विद वॉल्स is not something which we are trying to consider as something that hinders the movement, ठीक है। तो collisions जो यहाँ पर internally between molecules हो रहे हैं। now last class में इनफैक्ट जब हम लोग collision frequency पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था that molecules आपस में collide कर रहे हैं, ठीक है। now दो, हाँ सॉरी, अभी बीच में आई थिंक थोड़ा सा वॉइस फिर से क्रैक हो गया था। इज इट बेटर नाउ? कैन यू गाइस हियर मी नाउ? हाँ, सो एज आई वाज सेइंग दैट कोलिजन्स हम लोगों ने बायोमोलिकुलर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर मतलब तीन मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, टेट्रा मॉलिक्यूलर मतलब फोर मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ आउट ऑफ ऑल द कोलिजन्स दैट हैपन इनसाइड, 99.9% collisions are bimolecular only, ठीक है। The probability of 3 or more atoms colliding simultaneously is very very less, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट हिंडर हो रहा है, ठीक है, वो प्राइमरीली किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, बायोमोलिकुलर कोलिजन्स की वजह से, ठीक है। अब नोटिस करना, व्हेन अ कोलिजन हैपेंस, ठीक है, देन हाउ इज द मूवमेंट गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर मैं एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ,
ठीक है, तो इट इज फ्री टू मूव, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट इन ऑल द डायरेक्शंस, इट इज फ्री मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, फ्री मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हिंडर नहीं हो रहा। ठीक है, बट यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिजन? एक एटम दूसरा एटम आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, अज्यूमिंग दीज टू बी स्फेरिकल। ठीक है, ये एक एटम और दूसरा एटम, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर 2r से कम हो जाएगा, देन विल कंसिडर दैट एज अ कोलिजन, राइट। तो ये जो डैश्ड रीजन है, ठीक है, ये नोटिस करना, ये 2r रेडियस का डैश रीजन है। तो अगर किसी दूसरे एटम का सेंटर, ठीक है, व्हेन द सेंटर ऑफ अनदर एटम, ठीक है, फॉल्स इनसाइड दिस डैश रीजन, विल कंसिडर इट अ कोलिजन। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी दैट ड्यूरिंग कोलिजन द मूवमेंट इज हिंडर्ड। ठीक है, ये मॉलिक्यूल, लाइक ये दोनों मॉलिक्यूल, ठीक है, इनके साथ, इनके बारे में सोचोगे आप, तो इनका मूवमेंट अब रेस्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है, लाइक दे कैन गो इन सम डायरेक्शंस, बट इन दिस डायरेक्शन जहां पर ये मीटअप कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हिंडर हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना, ये जो डैश्ड रीजन मैंने लिखा, ठीक है, दिस डैश्ड रीजन इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। किसके लिए? नोटिस करना यहाँ पर, फॉर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने यहाँ पर डैश रीजन हाईलाइट करा, ठीक है, दिस डैश डैश रीजन, this is excluded volume for a pair of molecules, because when this pair comes and collides, right, this region becomes restricted. ठीक है, this region becomes restricted towards movement. ठीक है, तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये कितना रहेगा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर पेयर, इट विल बी 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। ठीक है, और अगर मैं ये पेयर के लिए पर मॉलिक्यूल में निकालना चाह रहा हूँ इसको, तो आई जस्ट सिंपली डिवाइड बाय 2, सो हाफ इंटू 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब। ठीक है, एंड अगर मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, ठीक है, इफ आई 1 मोल सब्सटेंस, सो आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय entire value by Na, Avogadro's constant. So I'll get the average excluded volume per mole. ठीक है, which will be half into 4/3 pi into 2r का cube into Na. ठीक है, and thus my V corrected क्या है? That is the volume available for free movement will be volume of the system V minus N into B, where N will be the moles of gas and B is the excluded volume per mole of the gas. ठीक है, तो ये आपको वॉल्यूम करेक्शन समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन अगेन रीरीड द कैलकुलेशंस ऑफ हाउ वी डिड द वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, पहले मैं एक बार दोबारा रीआइटरेट कर देता हूँ दैट व्हाई और हाउ वी टॉक्ड अबाउट द वॉल्यूम करेक्शन। यहाँ पे नोटिस करना, मैं वापस से रीआइटरेट कर रहा हूँ, दीज करेक्शंस शैल बी डन सच दैट इफ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए, ठीक है, ये V क्या होता था? आइडियल गैस के लिए V होता था वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। ठीक है, तो मेरे पास अगर एक एक्चुअल रियल गैस रखा हुआ है इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम V, तो उसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन का V क्या होगा? आइडियल गैस इक्वेशन का V वुड बी द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट। ठीक है, so volume available for free movement will be, as you can understand, volume of the system minus something, and that something is what we calculated based on collisions, because collisions are when the volume gets hindered. ठीक है, all right, now अब इसमें हर्ष ने डेफिनेटली रिप्रेजेंट करा है। सो हर्ष का एक डाउट आ रहा है। हर्ष इज सेइंग, सर वॉल्यूम टू बी एक्सक्लूडेड should also depend upon collision frequency. Well, यहाँ पर नोटिस करना हर्ष, ठीक है, what I am trying to say
is not in terms of time. ठीक है, collision frequency जो होता है, collision frequency, it talks about the number of collisions, the bimolecular collisions happening per unit time, ठीक है, for a given molecule. ठीक है, एक given molecule कितने collisions कर रहा है in a given amount of time. ठीक है, in a given amount of time, that is 1 second. ठीक है, यहाँ पर मैं टाइम का फैक्टर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि जब आइडियल गैस के बारे में हम लोग बात करते थे, आइडियल गैस के बारे में, ठीक है, जब इंटायर वॉल्यूम था सिस्टम का, दैट वाज समथिंग विच वाज अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. ठीक है, बट रियल गैस में बिकॉज ऑफ द एक्चुअल साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, द इंटायर वॉल्यूम इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. ठीक है, नाउ initial guess, simplest guess could be कि you remove the particles का size themselves. ठीक है, however I am saying that there is a better guess to it which is based on the collisions that will be happening between molecules. ठीक है, so because of that what I am saying is that overall volume, ठीक है, overall volume में से there is some part that is to be excluded. ठीक है, नाउ हाँ, अब इसमें अब दिशा का डाउट देखना. दिशा का डाउट आया है. शी इज सेइंग दैट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द डैश्ड रीजन इज वॉल्यूम हिंडर्ड बिकॉज व्हाई कांट द मॉलिक्यूल ऑन द लेफ्ट मूव टू द लेफ्ट. ठीक है, नाउ दैट इज व्हाट आई मेंट बाय फ्री मूवमेंट वर्सेस हिंडर्ड मूवमेंट. ठीक है, दिशा यहाँ पे ध्यान से सुनना. फ्री मूवमेंट का मतलब होगा दैट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, in any direction whatsoever. ठीक है, that is what is meant by free movement. अगर कहीं पे भी restriction आ जाता है, किसी भी एक डायरेक्शन में भी restriction आ जाता है, then that is called as hindered movement. तो यहाँ पर even एक इस डायरेक्शन में restriction आ गया, this is hindered movement. ठीक है, so what we are trying to say is that इस dashed region में, ठीक है, अगर कभी भी कोई दूसरा atom आ जाएगा, ठीक है, then the movement will become hindered because that will become a case of collision. ठीक है, हाँ. सो नाउ हार्दिक का डाउट और हर्ष का डाउट एक्चुअली सेम लाइंस पर है. हार्दिक का डाउट है दैट एट अ टाइम नॉट एवरी मॉलिक्यूल इज इन कोलिजन. ठीक है, so why are we taking this or multiplying this by all the molecules? Right? हाँ, एक एक करके. अभी आ रही है आवाज क्लियर? Is it still lagging or is it better now? Okay. So yeah, as I was saying that यहाँ पर हार्दिक का भी यही डाउट है. ठीक है, हार्दिक का डाउट क्या है दैट every molecule is not in the collision at the same time. ठीक है, then why are we kind of multiplying this by Na? ठीक है, all molecules के लिए क्यों हम लोग कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, यहाँ पर ये अजम्पशन जा ही नहीं रहा है दैट ऑल मॉलिक्यूल्स आर अंडर कोलिजन. ठीक है, ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है. ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना, इवन इफ आई स्टार्टेड विद माय इनिशियल गेस, ठीक है, ये अगर मेरा इनिशियल गेस रहता, ठीक है, तो ये इनिशियल गैस का मतलब क्या था कि आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ठीक है, आप एक एक पार्टिकल का वॉल्यूम एड अप करते जाओ. ठीक है, एंड यू कॉल दैट एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. राइट, नाउ दैट डज नॉट मीन कि दिस पर्टिकुलर रीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल आज यहाँ पर है, कल को यहाँ से हट गया. ठीक है, कल को ये यहाँ पर आ गया, तो ये रीजन तो हो गया ना अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट. वैसे नहीं सोचना है. ठीक है, समझ में आया तुम्हें हार्दिक? ठीक है, एट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट नहीं सोचने के लिए बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि एज अ होल, एज अ कलेक्शन, ठीक है, देयर इज दिस रेस्ट्रिक्शन दैट कम्स टू फ्री मूवमेंट, एंड उसका बेटर गेस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ
how the or when the movement gets hindered, which is during a collision. ठीक है. अच्छा, फिर रुद्र का भी डाउट है, what if 3 molecules collide simultaneously. ठीक है. So you are right रुद्र कि हम लोगों को ये भी केस लेना चाहिए कि 3 molecules साथ में collide करें. However, the probability of 3 molecules colliding simultaneously is very very less. ठीक है. So we don't really bother much about it. ठीक है. And मैंने आपको पहले बताया कि van der Waals equation is not the most perfect equation. ठीक है. This is in fact, as I said in the beginning also, कि ये starting process है towards understanding how real gases can be modeled, how they can be written an equation for. ठीक है. So कल को you will find equations which are better than van der Waals equation, and they would be better if we take such different considerations into account. ठीक है. कुछ और improvisations करेंगे तो उससे we will be able to improve van der Waals equation. ठीक है. However, at this point in time, I will be not getting into the improvisation of van der Waals equation. ठीक है. I'm sure आप लोगों को कुछ innovative thoughts आ रहे होंगे. ठीक है. That ये भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. It might improve van der Waals equation, which are good thoughts, which are actually the right way of thinking about it. However, I am just going to keep myself restricted to the syllabus right now, because इसके ऊपर भी ठीक है और अच्छी equations होती हैं. पेंग रॉबिन्सन equation जो होती है van der Waals equation जैसी दिखती है with slight modifications. ठीक है. So we'll focus on van der Waals equation right now. ठीक है. हाँ, यश 2r इसलिए लिया because it is the distance between these two atoms का center. ठीक है. All right. So आपको ये volume correction वाला part समझ में आया. ठीक है. So we have written now volume correction is V minus NB. ठीक है. This is the volume that is available for free movement, and B का result ये मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है. Now let's move on to pressure correction. ठीक है. ध्यान से फोकस करना. अब मैं प्रेशर करेक्शन के ऊपर बात करने जाऊंगा. एंड प्रेशर करेक्शन थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है. ठीक है. ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है इनफैक्ट आई वुड से. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्रेशर करेक्शन इन अ बेटर मैनर, इन अ मोर डिटेल्ड मैनर. ठीक है. सो ऑब्जर्व करना. इन रियल गैस, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है. दिस इज द assumption that is right now which van der Waals equation start with. ठीक है. Although मैंने आप लोगों को repulsive forces के बारे में भी बताया था as part of our experimental understanding कि real gas के molecules के बीच में attractive forces as well as repulsive forces दोनों होंगे. पर ध्यान से सुनना. ठीक है. Please pay attention. अभी जब मैं van der Waals equation को start करूंगा, I will be only talking about attractive forces to begin with. ठीक है. एंड रिपल्सिव फोर्सेस अपने आप फीचर होंगे. ठीक है. इन सम वे विच आई विल टॉक अबाउट अ लिटिल लेटर. ठीक है. राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है. रिपल्सिव फोर्सेस एक्चुअली कब फीचर करते हैं? व्हेन द गैस इज अंडर वेरी हाई प्रेशर कंडीशंस. इफ यू रिमेंबर दिस फ्रॉम द लास्ट क्लास. ठीक है. कहाँ गया? हाँ, ये वाला. तो रिपल्सिव फीचर्स, रिपल्सिव फोर्सेस ये ऐसे हाई प्रेशर रीजन में ही डोमिनेट करते हैं. ठीक है. व्हाट डू आई मीन बाय दिस हाई प्रेशर? ठीक है. ये हाई प्रेशर, इफ यू आस्क मी वैल्यूज, ठीक है, तो ये 700 800 ATM. ठीक है. एटलीस्ट 500 ATM तो होगा ही सही. ठीक है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द हाई प्रेशर रीजन. ठीक है. तो यहाँ पर अभी मैं हाई प्रेशर रीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है. 0 से 100 200 300 ATM. ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर कंसिडरिंग एज लो प्रेशर ओनली. ठीक है. दिस इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच हम लोग रियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर कमिंग बैक, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर करेक्शन इन रियल गैस, व्हाट वी आर सेइंग इज दैट देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, नोटिस करना, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस what happens is that the real gas exerts lesser pressure
than what it would have exerted if there were no attractive forces. ठीक है, like say for example यहाँ पे notice करना, ये एक real gas है यहाँ पर, ठीक है, inside this vessel, and this real gas is something which is just a moment guys, ठीक है, and this real gas is something which is एक वेसल में रखा हुआ है और हमने यहाँ पे मैनोमीटर लगा दिया है, ठीक है, ये मैनोमीटर जो हमने लगा दिया है इससे हमें एक प्रेशर का ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है, व्हाट इज दैट प्रेशर, दैट इज द एक्चुअल प्रेशर, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, और यू कैन से द रियल प्रेशर, ठीक है, जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है। नाउ नोटिस करना, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गायब हो जाए, ठीक है, दैट इज टू से इफ द गैस वाज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस सब गायब हो जाए, ठीक है, देन द करेक्टेड प्रेशर वुड बी मोर देन व्हाट द रियल गैस इज एक्सर्टिंग, ठीक है, तो अगर ये गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा होता, राइट, देन इट वुड हैव एक्सर्टेड मोर प्रेशर। तो जो करेक्टेड प्रेशर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज पी रियल प्लस समथिंग, ठीक है, आई विल लेट यू थिंक ऑन इट फॉर अ मिनट एंड देन ट्राई टू री एक्सप्लेन, ठीक है, एक बार आप लोग सोचो इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर, हाँ राइट, तो यहाँ पर क्या है, नोटिस करना, वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। यू हैव अ रियल गैस, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड दिस वेसल। अब ये रियल गैस क्या हो रही है, ये रियल गैस कोलाइड कर रही है विद द वेसल, ठीक है, द पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद द वेसल एंड उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट इसलिए होता है ना, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द वेसल, ठीक है, फोर्स लगता है, मोमेंटम चेंज होता है, उसकी वजह से फोर्स लगता है एंड प्रेशर आता है। अब मैंने ये मेजर कैसे करा, मैनोमीटर लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रेशर मुझे मिल रहा है उसको मैं पी एक्चुअल, पी ऑब्जर्व या पी रियल बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द एक्चुअल प्रेशर विच आई एम ऑब्जर्विंग, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इफ दिस गैस वाज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है, तो क्या हो रहा होता कि ये जो पार्टिकल वॉल के साथ में कोलाइड करने वाला है, ठीक है, it would have struck the wall with a greater force if no attractive forces were present। रियल गैस में तो कैसा होता है, रियल गैस में ये अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से, ठीक है, ये जो फोर्स यहाँ वॉल के ऊपर लगने वाला है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। बट अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ कि ये फोर्सेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, देन ज्यादा फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है यहाँ पर, तो ये ज्यादा मोमेंटम से कोलिजन होगा, and because of that you will find that the pressure exerted, ठीक है, if the gas was behaving like an ideal gas would have been more, ठीक है। so P corrected I will write it as P real, जो कि मेरा एक्चुअल रियल गैस का प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है, प्लस समथिंग, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वापस से नोटिस करना that I am writing it in this manner because of the way in which I have decided to do the corrections। so if you remember, मैं वापस से इसलिए यहाँ पर रिकैप करता हूँ, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, these corrections, ठीक है, my bad, oops, these corrections I am doing in such a way कि अगर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा होता, तो what I should have written as P, what I should have written as V, ठीक है, नोटिस करना ये। तो अगर मैं एक रियल गैस को आइडियल गैस की तरह
ट्रीट करूंगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस, ठीक है, जो रियल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, अगर यही गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाती तो ये ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ठीक है। तो आई हैव टू राइट P करेक्टेड एज P रियल प्लस समथिंग, ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पर नोटिस करना हाउ आई हैव रिटन दैट इफ द गैस वाज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, द P करेक्टेड इज P रियल, जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस समथिंग, ठीक है। Why have I added it over here? Because if these forces were not present, then the molecules would have struck with a greater momentum, greater force, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है, ठीक है। Why V corrected, ठीक है, मैं एक बार कोई रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। आई होप यू रिमेम्बर दैट हम लोगों ने V corrected लिखा था, ठीक है, V minus something, right? Why we had written this? Because our definition of volume for an ideal gas, ठीक है, was the volume available for free movement, ठीक है। तो ये जो रियल गैस था, इफ दिस वाज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, तो उसके लिए कितना वॉल्यूम, ठीक है, फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल होता? इट वुड हैव बीन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट P करेक्टेड, ठीक है, P करेक्टेड इज P रियल, ठीक है, जो एक्चुअल प्रेशर गैस एक्सर्ट कर रही है, प्लस समथिंग होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये गैस के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, ये गैस के बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, if we are going to neglect them, if we are going to assume this gas to behaving like an ideal gas, then it would have exerted more pressure, ठीक है। all right, now अब हम, जैसे हम लोगों ने वॉल्यूम के टाइम पे समथिंग का कैलकुलेशन करा था, वैसे अब हम लोग यहाँ पर प्रेशर करेक्शन के भी समथिंग का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना दिस प्रेशर करेक्शन फॉर अ गिवन कोलिजन डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। कितना और कैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस थे विच वर एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना दैट दिस प्रेशर करेक्शन फॉर अ गिवन कोलिजन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना, ये प्रेशर करेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये प्रेशर करेक्शन कैसे आ रहा है? वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे तो वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो रहेगा कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। दूसरा रहेगा कि कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली नेबरहुड में रहेंगे, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज कोलाइडिंग, ठीक है। अगर यहाँ पर आप नोटिस करो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद अ कंपैरिजन, ठीक है। अगर मेरे यहाँ पे नोटिस करना दोनों केस में n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, टोटल n मॉलिक्यूल्स है दोनों केस में, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे वॉल्यूम छोटा है, ठीक है, इन दिस फर्स्ट केस वॉल्यूम छोटा है। तो ये जो मेरा कोलाइडिंग वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल है, उसकी विसिनिटी में ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। वेयरएज यहाँ पर, ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है टोटल, अभी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है उसकी विसिनिटी में कम मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स वुड बी मोर स्प्रेड अराउंड। माय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से अगर ये डबल वॉल्यूम का था, तो इसकी विसिनिटी में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम हो जाएंगे, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट द प्रेशर करेक्शन फॉर अ गिवन कोलिजन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट आर गोइंग टू अट्रैक्ट द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को कितने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं उस पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ ये तो मैंने किसके बारे में बात करा, यहाँ पर आप नोटिस करना एक कोलिजन के बारे में, दिस वाज फॉर अ पर्टिकुलर कोलिजन, ठीक है। बट जब हम प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे, व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेशर मेजरमेंट, तो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन कोलिजन, ठीक है, इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ all the collisions that are happening per unit time, right? So the overall pressure correction would be because of
all such collisions, ठीक है, per unit time. एंड ये जो कोलिजन्स रहेंगे वॉल के साथ में, ठीक है, सिर्फ एक कोलिजन के ऊपर फोकस नहीं करा ना, सारे कोलिजन के ऊपर फोकस करना है. एंड ये जो कोलिजन्स रहेंगे ये भी n/v के प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है. दिस इज समथिंग which is also going to be proportional to n/v, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. सो यहाँ पर अब आप नोटिस करना, ठीक है, एज अ क्विक recap to pressure correction, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, जो P करेक्टेड रहेगा that will be P real plus something. ये जो something है इसको हम pressure correction बोल रहे हैं. ये pressure correction will be because of what, ठीक है, because of the attractive forces that are there between the gas particles, ठीक है, that is number one factor. Now how many molecules are attracting the colliding molecule, that's the second factor. And how many such collisions are happening, ठीक है. Okay, अभी भी क्रैक हो रही है क्या आवाज, or is it something better? Is it better now? Can you guys hear me better now? My bad, ठीक है. So what I was talking about was, हाँ, that ये तीन फैक्टर्स जो रहेंगे ये मिलकर हमारा प्रेशर करेक्शन बनाते हैं, ठीक है. पहला फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कितना अट्रैक्ट करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है. दूसरा फैक्टर रहेगा कि यू नो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग अ गिवन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, ठीक है. एंड तीसरा फैक्टर रहेगा हाउ मेनी सच कोलिजन्स आर हैपनिंग, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है. तो इन तीनों को मैं कंबाइन करूंगा. ये पहला वाले फैक्टर को, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसको हम कैप्चर करते हैं विद ए, ठीक है, दैट इज द फैक्टर विद व्हिच वी कैप्चर देम, दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए, ठीक है. देन दूसरा जो फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, जो मैंने यहाँ पे लिखाया, दैट यू नो एक गिवन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के अराउंड, उसकी विसिनिटी में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज सिंपली n/v, number of moles of particles or molecules upon the volume that is there, ठीक है. And the तीसरा फैक्टर है which is the collisions, number of collisions that are happening with the wall, that is also dependent on n/v, ठीक है. तो ये प्रेशर करेक्शन को we represent with this term called as a n square by v square, ठीक है. P, the pressure correction, is a n square by v square, where a is a van der Waals parameter that represents attractive forces between gases, ठीक है. n is the moles and v is the volume of the vessel itself, ठीक है. तो यहाँ पर नोटिस करना, as I said, a is the van der Waals parameter which relates to the intermolecular force of attraction, and n/v will be the number of moles per unit volume. So जो p corrected रहेगा मेरा, ठीक है, that we write as the actual pressure which is measured plus a n square by v square, ठीक है. And then if we take both these corrections together, p corrected and v corrected, okay, let me zoom in. If we take both these corrections together, p corrected and v corrected, what we get is the van der Waals equation, ठीक है. हाँ, कौन सा इक्वेशन कह रहे हो गुरुदेव? Which equation in particular? प्रेशर करेक्शन वाला ना. मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ प्रेशर करेक्शन का, ठीक है. यहाँ पर नोटिस करना, ये प्रेशर करेक्शन के मैंने तीन फैक्टर्स डिस्क्राइब करे आपके सामने. सो ये जो कोलिजन है जिसकी वजह से प्रेशर आ रहा है, आई एम आस्किंग यू टू फोकस ऑन दैट, ठीक है. नाउ ये जब कोलिजन करने वाला है पार्टिकल, ठीक है, कोलिजन करने के पहले इसके अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रहेंगे दूसरे पार्टिकल्स के साथ में, दे विल ट्राई टू रिड्यूस इट्स फोर्स, इट्स मोमेंटम व्हाइल कोलाइडिंग, ठीक है. तो प्रेशर करेक्शन में मैंने ये एक फैक्टर ए डाल दिया विच इज एन इंडिकेटिव ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैसेस, ठीक है.
ये जो A रहेगा ना, ये गैस के टाइप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेट्स से अमोनिया गैस है, उसका A ज्यादा रहेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू से नाइट्रोजन गैस, ठीक है। सो दैट इज समथिंग टू डू विद द टाइप ऑफ गैस दैट इज देयर, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन दूसरा मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो प्रेशर करेक्शन आया वो किस वजह से आ रहा है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये कितने मॉलिक्यूल्स हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो उसकी विसिनिटी में रहेंगे, एंड हाउ टू गेस द विसिनिटी मॉलिक्यूल्स, द बेस्ट गेस वुड बी to talk about the density of molecules, that is number of molecules per unit volume, ठीक है। and then as a final guess you have you know एक सिर्फ एक कोलिजन के ऊपर फोकस नहीं करना ना, you have to focus on multiple collisions which are acting on a wall, उसी से प्रेशर आता है। तो how many collisions happen per unit volume, that is given by, or that is also proportional to n by v, number of moles per unit volume। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये प्रेशर करेक्शन बना, ठीक है। P is equal to a n square upon v square, ठीक है। and as I said that P corrected is equal to P plus a n square upon v square, ठीक है, जो एक्चुअल प्रेशर है प्लस करेक्टेड प्रेशर, ठीक है। ऑल राइट, नाउ अब ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस डेरिवेशन ऑफ वंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है, ये मैंने काफी डिटेल में काफी डेप्थ में जाके आप लोगों को ये डेरिवेशन बताया है, समझाया है, ठीक है, so as to give you a conceptual understanding, ठीक है। however what I have seen is that many a time students are kind of not much comfortable with the derivation, ठीक है। there are some students जिनको derivation समझ में आता है and they are able to appreciate the derivation also, however there are many students who are not able to be quite comfortable with the derivation, ठीक है। तो उनके लिए मेरा एडवाइस क्या रहेगा, ठीक है, आप मत जाओ, ठीक है, डोंट गो इनटू द डेरिवेशन कि ये वॉल्यूम करेक्शन कैसे आया, ठीक है, ये प्रेशर करेक्शन कैसे आया, ठीक है, डोंट गो इनटू दैट डिटेल, जस्ट रिमेंबर, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, ठीक है, विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, जस्ट रिमेंबर इतना पार्ट दैट वंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है, कम्स फ्रॉम करेक्टिंग द प्रेशर एंड द वॉल्यूम टर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, इतना स्टेटमेंट ध्यान रखना that van der Waal equation comes from correcting the pressure and the volume terms in ideal gas equation, and these corrections are done in such a manner that if the real gas was to behave like an ideal gas, okay, then what we should write on the left hand side as P and left hand side as P corrected and V corrected, ठीक है। और ये आप रिजल्ट ध्यान में रख लो, ठीक है, that van der Waal equation is P plus a n square upon v square, this is your corrected pressure, and V minus nb, this is your corrected volume, that is equal to nRT, ठीक है। ये P क्या रहेगा, P is the actual pressure, ठीक है, ध्यान से फोकस करना है एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन है। P क्या रहेगा, P is the actual pressure जो कि हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे होंगे। V क्या रहेगा, V will be the volume of the vessel, volume of the container in which the gas is present, ठीक है। N is the moles, R is the gas constant, T is the temperature, ठीक है। a n square by v square is the pressure correction and nb is the volume correction. Just understand the terms which are there in this particular equation, ठीक है। हाँ, आज तक आपको समझ में आया, P is the real pressure, that is the actual pressure, ठीक है, which we are measuring. V is the volume of the vessel, ठीक है। This a n square by v square is the pressure correction that we have done, ठीक है, and this nb is the volume correction that we have done, ठीक है। अगर as a whole आप मुझे इसको पूछोगे, ठीक है, as a whole, ठीक है, as a whole this thing will be called as P corrected, as a whole this thing will be called as V corrected, ठीक है। एंड इसमें ये जो A and B हैं, ठीक है, these A and B, इनके ऊपर ध्यान से फोकस करना, these are called as van der Waals parameter of a real gas, ठीक है। they actually depend upon the type of gas, N2 गैस के लिए अलग होगा, O2 गैस के लिए अलग होगा, ठीक है। मैं इनकी डिटेल्स में जाऊंगा, I am going to talk about the details of each A and B, ठीक है। so give me a moment, let me first make you comfortable with this equation first,
ठीक है, आर यू गाइज नाउ कंफर्टेबल विद व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू एज अ रियल गैस इक्वेशन, वॉन डर वॉल इक्वेशन? ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल हैव योर डाउट्स विद इट कि मतलब आपने थियोरेटिकली सोचा तो ठीक है, बट डज इट रियली एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर? एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। ठीक है, ये थियोरेटिकली हमने सोचा कि हाँ मतलब अगर रियल गैस का इक्वेशन लिखना है तो दिस इज हाउ इट शुड वर्क, एंड नाउ वी हैव टू सी इट इफ इट मैचेस विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, हाँ राइट आस्था, ये जो दोनों V हैं, ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वेसल है। ठीक है, V स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम ऑफ वेसल ओनली। ऑल राइट, अभी एक बार A एंड B के ऊपर फोकस करना। ठीक है, A एंड B आर वॉन डर वॉल्स पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप फोकस करो व्हाट वी विल कॉल एज वॉन डर वॉल पैरामीटर। सो B, ठीक है, सबसे पहले B से स्टार्ट करता हूँ। B इज अ लिटिल सिंपलर। B इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा? ठीक है, अगर आपको डायमेंशन एनालिसिस करना है, B का यूनिट क्या रहेगा? ठीक है, NB का यूनिट लीटर के बराबर आना चाहिए, तो B का यूनिट आएगा लीटर पर मोल। ठीक है, दैट इज व्हाट द यूनिट ऑफ B इज। ठीक है, एंड डेफिनेटली इसका कैलकुलेशन इज समथिंग विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ये हम लोगों ने पहले ही करा था, हम लोगों ने डिराइव कर लिया था ऊपर ही। इट इज हाफ इंटू Na इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 2r का होल क्यूब। ठीक है, सो इफ यू काइंड ऑफ फर्दर सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, if you further simplify this, so this becomes 4 into Na into 4/3 pi r cube। ठीक है, मतलब ये 2r को मैंने खोल दिया तो ये 8r क्यूब हो जाएगा, तो ये 4 into Na into वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नोटिस करना, एज आई सेड it depends on the size of the molecule. Why? Because this r is what is representing the radius of the atom or the size of the atom. तो अगर गैस पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उसका B का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, एज अ सैम्पल सेट ऑफ वैल्यूज, ये मैं आपको H2 गैस और मीथेन गैस का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नॉट फॉर यू टू रिमेंबर एनी वैल्यूज। ठीक है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर एनी वैल्यूज, दिस इज जस्ट समथिंग व्हिच आई एम शोइंग और हाईलाइटिंग टू गिव यू अ सेंस कि ये वैल्यूज होते कैसे हैं। ठीक है, काफी छोटा वैल्यू रहेगा B का, इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज क्वाइट बिग। ठीक है, ऑल राइट, देन A के ऊपर फोकस करना। A क्या होता है? एज आई सेड, A इज द प्रेशर करेक्शन। ठीक है, प्रेशर करेक्शन फैक्टर विच, और आई शुड से प्रेशर करेक्शन नहीं, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। A इज द प्रेशर करेक्शन फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अभी आप खुद एक बार ट्राई कर सकते हो, टेक अ गेस बाय डायमेंशनल एनालिसिस A का यूनिट क्या होगा? ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस आप लोगों को आता ही है ना, ये आप लोगों ने सीख लिया होगा ना फिजिक्स में। A का यूनिट क्या रहना चाहिए? बताओ शिवांग, तुमने B का करेक्ट दिया था। व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ A? अगर प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है और मोल्स मोल में है। प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है, मोल्स मोल में है। नहीं हार्दिक, क्या कर रहे हो? यूनिट्स के टर्म्स में दो ना आंसर, यूनिट्स पूछ रहा हूँ मैं A का। हाँ राइट, राइट यश, राइट केदार, हाँ राइट शिवांग, करेक्ट दिया आप लोगों ने। इट विल बी ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे नोटिस करना, ये A का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इसका अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है, B का कंपैरिजन कैसा था यश? यहाँ पे था ना, B साइज पे डिपेंड कर रहा है। H2 और N2 में N2 का साइज बड़ा होगा ना, लाइक हाइड्रोजन एज एन एटम इज छोटा, whereas N2 एज एन एटम इज बड़ा और मॉलिक्यूल इज बड़ा, तो greater the value of B, sorry, greater the size, greater will be the value of B। ठीक है, ऑल राइट, देन A के बारे में सोचो। यहाँ पर A का मैंने बताया, A डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जस्ट अ सेकंड,
A is something which, as I said, depends on the force of attraction. तो अब मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नॉलेज आपको अभी पूरी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये जो नॉलेज है ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सिखाई जाती है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये सीखते हैं दैट बिकॉज ऑफ द shape and geometry of molecules, ठीक है, there are these definitions that we assign to them, polar and non-polar, ठीक है। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने ये वर्ड्स कभी सुने हैं पहले, पोलर वर्सेस नॉन पोलर, आपने सुना है ये पहले, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है कि अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, इसमें नोटिस करना, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देने की कोशिश करता हूँ। अमोनिया के मॉलिक्यूल में, ठीक है, कैसा रहता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन इज नाइट्रोजन will have a partial negative charge, whereas these hydrogen molecules will have a partial positive charge, ठीक है। तो यहाँ पर what will happen is that there will be an uneven distribution of electron cloud, ठीक है। जो ये मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम पे बताया था, हाँ, पार्शियल नेचर वाला, राइट राइट। सो अगर आपको एक्सप्लेनेशन याद है तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पोलर नेचर आ जाता है, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल विल बी पोलर नेचर, ठीक है। वेयरएज अगर मैं N2 के बारे में बात करूं, N2 का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, इसमें दोनों नाइट्रोजन एटम्स ही हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा रहेगा, इसमें देयर इज असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन पोलर, ठीक है। हाँ, सो आई थिंक वो बीच में स्क्रीन फ्रीज हो गया था, ठीक है। हाँ हाँ प्रथमेश, मेरा ही नेटवर्क आज थोड़ा अच्छा नहीं है, दैट इज व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग आल्सो, it is my network which is a little painful today. So यहाँ पर this N2, ठीक है, this is non polar in nature, ठीक है। तो ये आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ ऑफ कोर्स हर्ष, मतलब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे डेफिनेटली पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप नोटिस करना पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है, इनके बीच में कैसा होता है, जनरली पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ए का वैल्यू 1.39 है और अमोनिया का वैल्यू ए का 4.17 है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ द वैल्यूज, डोंट ट्राई टू रिमेंबर द वैल्यूज एट ऑल, ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर द वैल्यूज एट ऑल, जस्ट गिविंग यू अ सेंस ऑफ द वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी मैं कि आपको एक स्टेटमेंट याद रखने के लिए बोलूंगा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर सब्जेक्टिव कंपैरिजन ऑफ ए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जैसे H2 N2 Cl2, ये सब नॉन पोलर ही है, ठीक है। तो इनमें कैसा रहता है, साइज बढ़ता है, ठीक है, तो ए का वैल्यू भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, remember this fact that amongst non-polar molecules, greater the size, ठीक है, greater will be the value of A, ठीक है। तो जैसे नोबल गैसेस हो गई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, तो इनमें भी कैसा होगा, साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, बी का वैल्यू भी बढ़ेगा और ए का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। बी का वैल्यू साइज पे डिपेंड करता था, ए का वैल्यू भी साइज पे डिपेंड करेगा, कहां पर, व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन नॉन पोलर केसेस, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया आपको, ठीक है।
नाउ एज अ क्विक प्रैक्टिस एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? सिर्फ यूनिट्स का खेल है इसमें. सी इफ यू आर एबल टू गेट द आंसर टू दिस, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स यू माइट नीड कैलकुलेटर फॉर दिस बिकॉज द वैल्यूज आर नॉट दैट गुड, दे आर जस्ट टू पेनफुल फॉर यू टू डू इट मैनुअली, ठीक है? बट आई जस्ट वांटेड यू टू यूज वंडरवॉल्स इक्वेशन, ठीक है? मैं एक बार क्विकली यहाँ पर रीआइटरेट कर देता हूँ वंडरवॉल इक्वेशन. p plus a n square by v square v minus nb is equal to nrt. Okay, this is the van der Waal equation. See if you are able to convert these into proper units and get the answer to pressure. Okay, this will be the last question for the day, so give it a shot. बस एक हर्ष का आंसर है. लेट मी चेक. हर्ष आपका आंसर करेक्ट है क्या? आइडियल गैस लॉ वाला तो हाँ, मतलब इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक 298 केल्विन, तो हाँ 24 पॉइंट समथिंग एटीएम आएगा, ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन का 24 पॉइंट समथिंग रहेगा. वंडर वाल इक्वेशन का बताओ. हाँ, लेट मी चेक प्रथमेश. हाँ, गुरुदेव और प्रथमेश और हार्दिक, हाँ राइट, तीनों के आंसर्स क्वाइट क्लोज है. हाँ करेक्ट, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले तो यूनिट्स का ध्यान रखना है. तो व्हाट आई वुड रेकमेंड बिफोर पुटिंग देम इनटू द वंडर वाल इक्वेशन, इनका यूनिट सुधार लो, ठीक है? डोंट पुट देम इन दीज यूनिट्स. किलो पास्कल पर इंटू डीएम रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन मोल स्क्वायर की जगह इसको आपको, ठीक है, डेसीमीटर तो लीटर के बराबर ही होता है, ठीक है? तो डीएम क्यूब को आप लीटर लिख सकते हो, ठीक है? बट ये जो पास्कल्स हैं या यू कैन से किलो पास्कल है, इसको आप एटीएम में जरूर कन्वर्ट कर लो, ठीक है? एंड बी का भी जो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है, ठीक है, उसको लीटर पर मोल में कन्वर्ट कर लो. तो वंस यू गेट ए एंड बी, ठीक है, by converting them, now you put them into van der Waal equation, ठीक है? You should be able to get the correct answer. हाँ राइट, A पार्ट का 24.4 समथिंग एटीएम था एंड B पार्ट का 21.9 या यू कैन से ऑलमोस्ट 22 एटीएम के आसपास आता है. हाँ राइट, ठीक है? वो आप इक्वेशन में पुट करके देखना. थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है, बट हाँ दिस इज टू शो यू हाउ दिस कैलकुलेशन वुड वर्क, ठीक है? ऑलराइट, सो this was van der Waal equation का derivation, I should say. Now how this van der Waal equation is going to explain experimental behavior, ये मैं आपको next class में बताता हूँ, wherein I will talk about validation of van der Waal equation, ठीक है? This is what we are going to talk about in the next class.
ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू वैलिडेट वॉन डेर वाल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हमने आज क्रिएट करी है, ठीक है, दिस शुड एक्सप्लेन दिस बिहेवियर दैट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर ये z वर्सेस p का बिहेवियर या फिर ये वाला बिहेवियर, ठीक है, ये इक्वेशन एक्सप्लेन करनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स विद यू एज वेल एज द नोट्स एंड विल कंटिन्यू देन। ठीक है, हाँ अच्छा, कल के डाउट लेक्चर का रिकॉर्डिंग भी चाहिए आप लोगों को। डाउट लेक्चर का पीडीएफ भेज दूं? ठीक है, पीडीएफ भेज देता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग तो भी कर सकता हूँ, बट ठीक है, रिकॉर्डिंग की जगह बेटर है पीडीएफ भेज दूंगा, आपका टाइम वेस्ट ही होगा विद द रिकॉर्डिंग। ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। हाँ, कुछ कह रहे हो हार्दिक तुम? नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं नहीं 7 तक ही था हार्दिक, मतलब मेरे पास जो टाइम टेबल है। आई डोंट नो, इसके बाद आपका कोई और लेक्चर भी होगा ना? अच्छा, नहीं है, ओके। अरे तो तुम पहले बोलते, फिर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता आज का लेक्चर। तुम लोगों की सैटरडे नाइट खराब करने में तो मुझे बहुत मजा आता। अब तो भाग गए बच्चे। नहीं नहीं, ठीक है यार, मैं नहीं खराब करूंगा तुम्हारी सैटरडे नाइट। तुम लोगों को वैसे ही स्कूल से फुर्सत नहीं मिलती है। ठीक है, चलो टेक केयर गाइस, थैंक यू, गुड नाइट।